Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. And in this lecture, I will be starting a new topic that is India's external relations. अब आप लोग सोचेंगे कि सर हम India's IR तो पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं, बट थोड़ी चीजें हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, वो आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी IR में, बट एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कैसे क्या करना है, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इस लेक्चर में. इज दैट क्लियर? So India's external relations. So in this lecture, I will be discussing a new topic. I will be starting a new topic that is India's external relations after the independence. India's external relations. Is that clear? Now, अब इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ओके, सबसे पहली चीज कि इंडिया was a colony of ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था. तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के फॉरेन रिलेशंस कौन बनाता था? ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन रिलेशंस ब्रिटेन बनाता था. इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा. एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, इंडिया ने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई. ओके, इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा. नाउ at the world level, situation around the world was very different. Why? Because after the second world war ended in 1945, a new war was started. क्योंकि second world war में दो पावर बनी, USA and USSR, and finally this resulted into a new war, that is Cold War. कोल्ड वॉर शुरू हुआ कब से? 1947 टू 1991. कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिए, कोल्ड वॉर. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड at the world level, situation was very different, and the world had just witnessed the devastating second world war. Okay, and the world was attempting to create a new international organization, that is United Nations, in 1945. UNO बन जाता है कब? 1945 में. Okay, and this emergence of new organization, okay, emergence of, so after, अब एक चीज याद रखिएगा, after 19, or you can say after second world war, after second world war, okay, world has seen a new international organization, that is UNO बनता है. Then emergence of new nations. emergence किस चीज का हो रहा था? न्यू नेशंस का. ओके, न्यू नेशंस लाइक इंडिया, चाइना एंड अदर. emergence of new nations. colonialism जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया. collapse of colonialism. collapse of colonialism. okay, collapse of colonialism. एंड दो चैलेंजेस फेस किए न्यू कंट्रीज ने, जिसको हम बोलते हैं ट्विन चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यू कंट्रीज. ओके, अब वो दो चैलेंजेस कौन से थे? ट्विन चैलेंजेस. ओके, पहली चीज, अब जितनी भी कंट्रीज आ रही थी वो सब कैसी हो रही थी? ट्विन चैलेंजेस. डेमोक्रेसी, दूसरा वेलफेयर. ये सबसे बड़े चैलेंज थे किसी भी नए नेशन के लिए, डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर. इंडिया के लिए भी ये चैलेंज था. डेमोक्रेसी मैंने आपको बताया था, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार दुनिया का इतना बड़ा इलेक्शन होना 1951 में, बहुत बड़ी बात थी. ट्विन चैलेंजेस.
Okay, and India, in Indian context, there was a partition, bitter partition, and the legacy of British India, it left behind many difficult challenges. इंडिया के लिए बड़े ही सारे challenges छोड़ के गया. Okay, and in this situation, India's effort to pursue an independent foreign policy. Okay, अब उस सिचुएशन में इंडिया को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करना, इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क इन द पोस्ट 1947 पॉलिटिक्स. ओके, एंड नेहरू ने इस बात को समझा. नेहरू को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. नेहरू, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. And Nehru was conscious about international image of India, and Nehru used foreign policy as an instrument to defend and strengthen India's independence. Nehru ने किस चीज को अपनाया? फॉरेन पॉलिसी को एक अपना टूल बनाया. फॉरेन पॉलिसी, Nehru adopted this foreign policy as a tool or an instrument to defend and strengthen India's independence and to safeguard India's national interest. Nehru used foreign policy to develop self-reliance. Self-reliance. Is that clear? To develop self-reliance, self-confidence. Okay, self-confidence, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए? पीस. Nehru was propagating peace and harmony among the nations. Harmony, peace and harmony. Is that clear? ये था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी को टूल बनाया. समझ में आ रहा है? एंड फाइनली इंडिया डिसाइडेड to conduct its foreign relation, okay, with an aim to respect the sovereignty of all other nations. इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू डिसाइड किया कि हम फॉरेन रिलेशन इस बेसिस पे बनाएंगे ताकि इंडिया रेस्पेक्ट करे किस चीज का? दूसरे नेशंस की सोवरेनिटी का. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, जिससे पीस एंड हार्मनी स्टैब्लिश रहे. Okay, and that is why इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, okay, in Indian constitution, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ओके, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दैट मींस द गवर्नमेंट और द स्टेट, दे शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस and security. They shall endeavor, they means state shall endeavor to maintain just and honorable relations between the nations. State shall endeavor to foster respect for international laws and treaty. Okay, state shall endeavor encourage settlement or international disputes by arbitration. तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी कि इंडिया पीसफुली सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाएगा और पीस एंड हार्मनी बनी रहनी चाहिए. इंटरनेशनल पीस की बात किसने की? इंडिया ने. समझ में आ रहा है? नाउ एट दैट टाइम हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी? नेहरू. नेहरू. तो अब नेहरू ही मेन आर्किटेक्ट
और फाउंडर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी किसको कहा जाता है? नेहरू को। तो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी और नेहरू फॉरेन पॉलिसी। पहला क्या था? टू प्रिजर्व, पहला ऑब्जेक्टिव था नेहरू का टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेनिटी। नेहरू का पहला मकसद था कि इतनी मुश्किल से जो हमने इंडिपेंडेंस पाया है उसको हमें खोना नहीं है, टू प्रिजर्व करके रखना, टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सोवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ओके। एंड तीसरी चीज थी प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेहरू की तीसरी फॉरेन पॉलिसी, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। थर्ड, ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है नेहरू फॉरेन पॉलिसी, याद रखिएगा, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ ड्यूरिंग द नेहरूज एरा, ओके, during the Nehru's era, a basic objective of India's foreign policy was extending support to colonial nations. नेहरू का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमें उन नेशन को सपोर्ट करना है जो कॉलोनी है, ताकि उनको डीकोलोनाइज किया जाए। So Nehru's, the objective of India's foreign policy was extending support to colonial nations in their struggle against colonialism. And another objective of India's foreign policy under the leadership of Nehru was promoting peace. Okay, and that is why Nehru constantly emphasized that the peaceful coexistence of the countries with different ideologies, different systems, it was a necessity, and believed that nobody had a monopoly on the truth, and pluralism was a fact of life. So Nehru का कहना यही था कि जितनी भी कंट्रीज है जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, डिफरेंट सिस्टम्स है, हमें उन सभी के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना है। समझ में आ रहा है? और इन्हीं डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाली कंट्रीज के लिए नेहरू ने 5 प्रिंसिपल्स बनाए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, एंड उन 5 प्रिंसिपल्स को बोला जाता है पंचशील। ओके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? ओके, पंचशील। ये हमने पढ़ा है आईआर में, पंचशील, 5 principles, okay, 5 principles of India's foreign policy. पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये पहला प्रिंसिपल कहता है। दूसरा है नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन। तीसरी चीज नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी टेरिटरीज के मैटर में, इंटरनल, किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है, नॉन इंटरफेरेंस in the internal affair of other nation. Is that clear? Then equality and mutual benefit. Okay, then peaceful coexistence. तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के। इंडिया ने ये चाइना के साथ कब साइन किया? 1954 में। तो ये चाइना के साथ हमने साइन किया, बट ये हमने सभी के साथ रखे, हमारे नेबरिंग नेशंस के साथ, वर्ल्ड के पावर्स के साथ, सभी के साथ पंचशील रखा कि इंडिया कहीं पे भी दखल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो द मेजर फंक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाज टू प्रमोट and protect
इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मेजर जो फंक्शन था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंडियन इकोनॉमिक interest, and that is why Nehru played a crucial role in setting the national agenda. Okay, he was his own foreign minister. Nehru अपनी कैबिनेट के खुद फॉरेन मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर भी थे. ओके, तो नेहरू दोनों ही थे, फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर. ओके, एंड दैट इज व्हाई ही एक्सरसाइज्ड profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1947 to 64. नेहरू ने इसीलिए बहुत ही अच्छे से फॉरेन पॉलिसी संभाली थी 1947 से 64 तक. समझ में आया? तो ये थी प्रिंसिपल्स इंडिया फॉरेन पॉलिसी की. अब नेहरू के टाइम में और कौन कौन सी चीजें हुई थी फॉरेन पॉलिसी में? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमने पढ़ा भी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. ओके, और मूवमेंट. समझ में आ रहा है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. अब नॉन अलाइनमेंट क्यों? मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर ब्लॉक बन गए थे, यूएसए, यूएसएसआर. दैट मींस कम्युनिज्म, कैपिटलिस्ट. ओके, अब उस टाइम पे क्या होता था, जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी वो या तो यूएस चूज करती थी या यूएसएसआर. बट इंडिया ऑलरेडी कॉलोनी था. इंडिया को पता था कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस अर्न किया है. दैट इज व्हाई इंडिया ना ही यूएस के साथ ना ही यूएसएसआर के साथ जाना चाहता था. इंडिया कंडक्टेड इट्स ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और नैम, और जिसको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड नेशंस, कॉलोनियल नेशंस, थर्ड वर्ल्ड नेशंस. ये याद रखिए. तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुरुआत करी. ओके, एंड मैंने आपको बताया रीजन क्या थे नैम के, रीजन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. रीजन क्या थे? पहला रीजन, that after the second world war the world was divided into two hostile blocks. Okay, one led by USA and the western powers, other by Soviet Union. Okay, and at that time Nehru had thought that the poor countries of Asia and Africa, they would gain nothing and they will lose everything if they join such military blocks like US or USSR. इकोनॉमी और खराब हो जाएगी इनकी. ओके, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स थे इनके मोटिव क्या थे? सिर्फ इनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कि इनके लिए वॉर करो चल के. तो इसलिए नेहरू को ये चीज पता था. नेहरू ने कहा कि हम नॉन अलाइन, किसी के साथ भी अलाइन नहीं करेंगे. एंड दैट इज व्हाई द लीडर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लीडर्स कौन थे? नेहरू. इजिप्ट के कौन थे? गमल नासिर. इंडोनेशिया के लीडर. ये सभी लीडर्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लीडर्स. ओके, they have their views to expand the area of peace instead of hostility. ये सभी लीडर नॉन नैम के लीडर्स क्या प्रमोट करना चाहते थे? प्रमोट पीस, प्रमोट पीस इंस्टेड ऑफ हॉस्टिलिटी. ओके, बिकॉज इस टाइम पे क्या हो रहा था? इस टाइम पे जब बंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में इंडोनेशिया में, बंडुंग कॉन्फ्रेंस. ओके, उससे पहले 1955 में क्या हो चुका था? सिएटो बन गया था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या था? मिलिट्री ब्लॉक था कि अगर किसी भी कंट्री पे हमला हुआ तो सारे ही नेशन साथ में आ जाएंगे, वेस्टर्न नेशन. और इसका पार्ट पाकिस्तान भी बना, बिकॉज पाकिस्तान ने यूएस की पॉलिसी अपना ली थी. और जितने ही मिलिट्री ब्लॉक्स यूएस ने बनाए, वैसे ही कौन बना रहा था? वैसे ही बना रहा था यूएसएसआर. यूएसएसआर ने क्या बनाया? वॉरशॉ पैक्ट, जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूएसएसआर के साथ में थी. बट इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया. समझ में आ रहा है? एंड उसीलिए इंडिया ने 1955 में इंडोनेशिया में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई? बंडुंग कॉन्फ्रेंस, जहां पे इंडिया एंड बाकी अदर कंट्रीज के लीडर्स ने प्रमोट किया पीस.
and they initiated a concept of non alignment movement. And finally ये NAM कब बन जाता है? 1961 में. ये याद रखिएगा, यूगोस्लेविया में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस. समझ में आ रहा है? NAM बन जाएगा. ओके, ये याद रखिएगा. तो ये था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. बिकॉज इंडिया को पता था ऑलरेडी हम कॉलोनी हैं, हमें फिर से किसी पावर ब्लॉक के थ्रू अपनी फॉरेन पॉलिसी या कोई पॉलिसी नहीं चलानी है. इसीलिए इंडिया ने क्या किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया. और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई. ओके, बिकॉज ड्यूरिंग 1940s टू 1950s, ओके, 1940s से 1950s में नेहरू हैड बीन एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी. नेहरू एडवोकेट क्या कर रहे थे? एशियन यूनिटी के बारे में, क्योंकि पूरा एशिया ही कॉलोनाइज था. ओके, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू बिफोर द इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, इंडिपेंडेंस से पहले मार्च 1947 में, मार्च 1947 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस होती है. एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस. ओके, एंड इस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस कहां पे होती है? न्यू दिल्ली में. मैंने आपको बताया भी है IR में, न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस होती है. ओके, और ये एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस किस लिए थी? प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस थी. एंड आफ्टर दैट इंडिया सपोर्टेड इंडोनेशियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. उसके बाद 1949 में, याद रखिएगा, इंडिया सपोर्टेड इंडोनेशियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इंडोनेशिया किसकी कॉलोनी था? डच की. याद रखिएगा, इंडोनेशिया में कौन था? डच. तो इंडिया ने सपोर्ट किया इंडोनेशियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ओके, बाय कन्वेनिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949. एंड फाइनली इंडिया सपोर्टर बन गया डीकोलोनाइजेशन का. इंडिया बिकेम अ सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, एंड फाइनली उस टाइम पे अफ्रीका में क्या चल रहा था? रेसिज्म. अफ्रीका में रेसिज्म था. तो इंडिया ने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई एंड अफ्रीका को भी डीकोलोनाइज करने के लिए आवाज उठाई. एंड फाइनली 1955 में बंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई. बंडुंग कॉन्फ्रेंस. ओके, बंडुंग कॉन्फ्रेंस. ओके, और बंडुंग कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने बात की किस चीज के बारे में? न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जितने भी हैं एशिया अफ्रीका के, उन सभी को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए. एंड फाइनली NAM बन जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन 1961 बन गया NAM. कब बना? बेलग्रेड यूगोस्लेविया में 1961 में, सितंबर में. ये याद रखिएगा. तो इस तरीके से NAM आता है. ओके, ये याद रखिएगा. तो अब यूएस ने तो NAM को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बहुत क्रिटिसाइज किया. ओके, यूएस ने बड़ा क्रिटिसाइज किया NAM को. ओके, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन फॉस्टर डल्स, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बोला इट इज अ काइंड ऑफ इमोरल न्यूट्रलिटी, कि आप यूएसएसआर के साथ इनडायरेक्टली तो लग ही रहे. तो उन्होंने बोला इमोरल न्यूट्रलिटी. एंड फाइनली दिस NAM क्या बना? थर्ड वर्ल्ड नेशंस. ओके, तो ये था इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ओके, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू द रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड चाइना आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अब पाकिस्तान और चाइना के साथ कैसे रिलेशंस रहे वो हम डिस्कस करेंगे. जैसे वॉर हो गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली द टॉपिक विल बी कंप्लीटेड. इज दैट क्लियर? तो बस इतना ही है इंडिया फॉरेन रिलेशंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ओके,
So thank you, class. Thank you so much.